So we're so happy to have you on board today, yeah, and you've come live with us. We're so excited, and I'm so Yeah, glad to see you here. And let's see how same this here, goes forward. It's gonna be same amazing. here. I'm sure everything that you share today is like people are really gonna learn from it and stuff. So I'm so Yes, excited. 100%. Let me quickly introduce you formally for anyone who has joined. Okay. Beatraw is a beatboxer who got nationwide attention with his head-turning heavy bass and unique sound behind two hit tracks of Gully Boy movie. He is a 22-year-old hip-hop artist from Mumbai whose real name is Roshan Gamare. Did I say that right? I Yeah, said it right? I think it's Okay. Gumre, Okay. Gumre. Yeah, Okay. yes. Roshan Gamare. He made his Bollywood debut with the soundtracks Asli Hip Hop with the superstar Ranveer Singh and Jingustan Zindabad beatboxing cover with Dub Sharma. Yeah, right. Apart from giving his tracks in the movie, he, along with his crewmate Decipher from Bombay Local, are in the Vice Indian beatboxing champion in the tag team category. Right. That's impressive. That's I impressive, hope Decipher है यहाँ पे Decipher. I don't know. yeah. Can you see me fine? By the way, just wanted to check. Sometimes my camera does this weird thing where half my face is cut off. So तो can you see me fine? शायद से वीडियो लैग हो रहा है. वीडियो. Yours is lagging a little bit. Mine also. हाँ, I think मेरा इंटरनेट थोड़ा ऐसा रहेगा. Maybe. अभी अभी But you क्लियर आ can रहा see है? me. Huh, I can hear you fine. It's only Wait a lagging minute. just a little Wait a bit. minute. Wait a minute. Wait a minute. Yeah, wait a So it's fine. Yeah, it's fine. See, I'm not using earphones, so I'm not sure what everyone else can hear. But अच्छा अच्छा ओके ओके. just quickly ask them, So anyone who's कम listening, अगर कोई please सुनता रहेगा तो in the कमेंट सेक्शन पे बता देना comment. कि कोई. Okay, so before you perform for us and all, I have a few questions for you. या या Okay, is प्लीज that cool? पूछो. Yes? या Okay, so my first question is, what are three words, okay, three words that you use to describe yourself? माई सेल्फ. Yeah, yourself. क्रेजी. Mhm. आई एम वेरी क्रेजी, ट्रस्ट मी. मैं बहुत स्वीट भी हूँ, मतलब मैं बहुत स्वीट बिहेव करता हूँ स्टार्टिंग में, तो वो भी एक Mhm. है. और ऑब्वियसली और मैं बहुत बॉलीवुड की बातें करता हूँ. आई मीन बॉलीवुड म्यूजिक, जस्ट बॉलीवुड म्यूजिक. या So you describe yourself with the word Bollywood music. That's interesting. या So tell me why like these two words in specific. Like tell me about yourself. Like why crazy? Why Bollywood music? क्रेजी मतलब मैं जब आप मेरे साथ कोई चिल करेगा, मतलब कोई भी मेरे फ्रेंड्स रहते हैं या फिर कोई स्टार्टिंग में भी चिल करता है मेरे साथ, तो आई एम वेरी, मतलब मैं अगर पार्टी कहाँ पे नहीं भी रहता ना, फिर भी मैं वहाँ पे पार्टी जैसा नाचता हूँ. आई मीन एकदम बहुत, शायद से वीडियोस देखे रहेंगे लोगों ने बहुत सारे मेरे डांसिंग के, लेकिन मैं बहुत खतरनाक डांसर हूँ मैं. और बॉलीवुड इसलिए मैंने बोला क्योंकि मैं बीट बॉक्सिंग रूटीन्स बनाने के टाइम जो मेलोडीज यूज होते हैं, तो मैं जो बॉलीवुड के जो मेलोडीज होते हैं कुछ कुछ बहुत ही अच्छे, मतलब वो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है जब बॉलीवुड के जो मेलोडीज कोई कोई यूज करता हूँ मैं. तो मेरे को लगता है कि मेरे को बॉलीवुड के मेलोडीज बहुत पसंद है, तो मैं अपने बीट बॉक्सिंग रूटीन में यूज करता हूँ. और स्वीट जैसे बोला कि मैं बहुत अच्छे से लोगों से बात करता हूँ. आई डोंट नो, मतलब मैं कभी Huh. रूड बिहेव भी नहीं करता, एकदम झगड़ा भी नहीं करता कभी, तो आई थिंक. Yeah, I या think I think from the few times that I've spoken to you, I can gauge the sweet part also. Okay. So the next question is it's not exactly a question. How has lockdown been for you? Like being stuck at home, at least for me, has been like thoda frustrating. But how has it आई been नो for आई you? नो फॉर मी इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. मतलब ऑब्वियसली लॉकडाउन में घर पे सब रहते हैं, तो मेरे को प्राइवेसी हाँ, मिलता ही नहीं है कि मैं रूम में बैठ के कुछ प्रैक्टिस करूँ या फिर कुछ करूँ. वीडियोस भी नहीं बना हाँ, सकता मैं. तो लॉकडाउन में एक चीज़ सीखने मिलती है कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम नाउ कि हम खुद पे ध्यान दें, कुछ क्रिएटिविटी सोचे और खुद के ऊपर काम करें. मतलब ये टाइम को अभी पॉजिटिवली लिया जाए तो यही सोचना पड़ेगा कि ऑब्वियसली एज अ आर्टिस्ट ग्रो करना है ये टाइम जो मिला है, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग एनीवेयर राइट नाउ. कुछ काम नहीं that's है, true. कुछ नहीं है. तो ये अगर ये टाइम को पॉजिटिवली लिया हो तो मुझे लगता है कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ इन दिस लॉकडाउन. या दैट्स इट.
You already answered my second question that I was going to ask you following that. Like, how has it impacted your music, like, you know, your art and your creativity? So I think you already answered that. Oh But do you have anything? yeah. Anything else like क्योंकि बहुत लोग है ना कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक लाइफ एक पॉइंट पे आके कि अभी मैं क्या करूँ, अभी इसमें क्रिएटिविटी अपना क्या निकालूं। तो एज अ बीट बॉक्सर, एज अ म्यूजिशियन, मैं सोचता हूँ कि तुम लोग जितने अलग अलग गाने सुनोगे ना, जैसे कि नॉट जस्ट हिप हॉप, अभी मैं रैपर्स लोग के साथ रहता हूँ तो मैं सिर्फ हिप हॉप नहीं सुनता, मैं बॉलीवुड सुनता हूँ, मैं हर टाइप के म्यूजिक सुनता हूँ मैं। तो मेरे को लगता है वो अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुन के बहुत सारा क्रिएटिविटी आता है दिमाग में कि ओ मैं भी ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं बॉलीवुड का Yeah. भी कुछ यूज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे मतलब मैं तो वैसे ही करता हूँ, ट्रॉय बॉय, डिप्लो, सिक किक, ये सब के वीडियोस देखता हूँ, फिर मेरे को बहुत क्रिएटिविटी आता है कि मैं ऐसे कुछ करूँ। या So that's awesome. I think like a lot of artists can like relate to that, especially right now. So that's pretty cool. One second, I think someone Kiara said, can't "Can you see your see me? face. I Can can you see see you. me? Oh no, Yeah, you I can can see see me. you. Yeah. Okay. I don't know. This is every time every time I'm taking a life, for some reason it happens. Like either half my face gets cut off or something of that sort usually. So and then I'm like, okay, can अभी you see me? अभी अभी फिर से पूछना कि मतलब सब सही है, सब दिख रहा है, मतलब Huh. मैं थोड़ा कट हो रहा हूँ Can क्योंकि everybody मुझे see पता us properly? Can you hear us? Everybody, whoever's listening. So, okay, next question, Chalo. है। या While they're listening, while ग्रेट। so, um, you do music full time, right? फुल टाइम Do या you do music full time? Full time, right? या So, you know, like in our society, the music as like a career tends to get looked down a little bit, आई and नो। people are always like, "Why are you like taking music up?" So, how is that experience with you? Like, how have you felt like following your passion and actually doing music full time? जैसे कि मेरे मतलब सोसाइटी तो ठीक है, लेकिन मेरे मतलब जो मेरा फैमिली है ना, उसमें मैं अकेला म्यूजिक करता हूँ। कोई कोई इसमें नहीं है कि म्यूजिक कोई कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे फैमिली के लिए स्टार्टिंग में ये था कि ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये भाई का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, या फिर कुछ नॉर्मल सा ऑफिस 9 to 5, राइट, तो वो क्यों नहीं कर रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अभी भी उनको लगता है कि काश तू नॉर्मल जॉब करता तो थोड़ा अच्छा होता अभी, क्योंकि अभी ऑब्वियसली वी आर नॉट गेटिंग एनी गिग्स, राइट, एज अ Correct. म्यूजिशियन। Yeah, या yeah. तो वो लोग को वही लगता है कि अगर तू काम करता, मतलब मेरे डैड है गवर्नमेंट में, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि तू भी गवर्नमेंट जॉब कर, ये कर वो कर। तो इट इज़ वेरी हार्ड राइट नाउ, बट तभी थोड़ा मैनेज हो रहा है, क्योंकि तो अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ बीट बॉक्सिंग के, तो थोड़ा मैनेजेबल है। That's बट amazing. How are classes इतना going for you? नहीं। या How are classes going? Do you like teaching? हाँ हाँ वेरी, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब मतलब मैंने वर्कशॉप बहुत दी है, लेकिन जूम कॉल पे ऐसे वर्बली ऐसे कुछ हाँ, करना, डिस्कस करना, तो इट इज़ वेरी हाँ, हार्ड, बट आई एम लर्निंग, नए नए चीज़ें सीखने मिल रही है मुझे। हाँ. That's awesome. Like, yeah, I mean, I'm so happy that you're actually following your passion and, you know, like going against the norm. Yeah, Like, it's really hard to right. do that, but especially when it feels like the entire world is against you. Like, mat karo, mat karo, mat karo. But then to be like, no, I'm going to do this and I'm going to do it because I love it. That is like some like हम्म। next level. बट Um, कभी कभी वो ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि जब अगर फैमिली में कोई रिलेटिव्स आता है घर पे, तो ऑब्वियसली वो लोग पूछते हैं कि ये क्या करता है, आपका छोटा बेटा क्या करता है, आपका बड़ा बेटा क्या करता है। तो मतलब ऑब्वियसली मेरे फैमिली को कुछ पता नहीं, मतलब दे नो कि आई बीट बॉक्स, बट उनको एक्सप्लेन करने नहीं आता है। तो वो लोग बोलते हैं वो ऐसा संगीतकार है, वो ऐसा म्यूजिक करता है, ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मली, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे से, तो इट्स ओके, बट थोड़ा ऑकवर्ड सीन्स हो जाते हैं। and also beatboxing is not like your mainstream musician. Like it's not राइट like राइट राइट राइट। it's like something that's completely different. It's not like singing or guitar or drums or like राइट some bass guitar. It's not your like mainstream what you राइट। usually do. It's also something very different. एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि बीट बॉक्सिंग इज अ टाइप ऑफ अ मिमिक्री, कि कोई मिमिक्री कर रहा है, बट इट इज़ नॉट, मतलब ये मिमिक्री बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऑब्वियसली म्यूजिक को फील करना, ना कि सिर्फ उसकी नकल करना, हम लोग वो म्यूजिक को फील करते हैं, हम लोग वो म्यूजिक प्रोड्यूस करने का ट्राई करते हैं, तो ऑब्वियसली वो मिमिक्री नहीं होता है। मतलब मिमिक्री इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड फॉर दिस, राइट। तो बहुत लोगों को लगता है कि तू मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो अगर कोई देखता रहेगा तो बिल्कुल नहीं।
हेलो मिमिक्री आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं है। Tell me a little more about beatboxing, na? Like how you got into it. How did you get into अच्छा beatboxing हाँ, and what you अम, started? अभी मुझे बीट बॉक्सिंग करते ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए, ठीक है। तो बिफोर बीट बॉक्सिंग आई वाज अ डांसर, मतलब मैं डांस करता था। A हाँ dancer. Okay, I did not हाँ expect you to हाँ। say. मतलब मैं डांस करता था, तो आई यूज्ड टू लिव इन बोरीवली, मतलब मैं बोरीवली में रहता था पहले। तो वहाँ से मैं शिफ्ट होके नालासोपारा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे, मतलब है अभी, अब भी है थोड़े बहुत, तभी नहीं थे। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग बीट बॉक्सिंग के वीडियोस यूट्यूब पे कि कैसे करते हैं। तो मेरे को थोड़ा अट्रैक्टिव लगा कि कैसे मुंह से ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो बीट बॉक्सिंग के 3 बेसिक साउंड होते हैं, तो ये मैंने सीखे क्योंकि ये इजी है, 1-2 हफ्ते में एकदम क्लियरली आ जाते हैं। तो मैंने अपने ये करके 3 साउंड सीख के अपने स्कूल फ्रेंड्स को सुनाया, ऑडियोज भेजा उनको, और मैंने बोला कि, और वो लोग ने बोला कि तू कैसे कर रहा है। और वो लोग को भी पता नहीं बीट बॉक्सिंग क्या होता है, तो दे वाला, एक तू मुंह से ढोल बजा रहा है, तो क्या कर रहा है। मैंने बोला ओह शिट। तो मैंने उनको समझाया कि मतलब इसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं, मुंह से ढोल नहीं। मतलब एक टाइप से मुंह से ढोल होता है, पर बीट बॉक्सिंग ही होता है। तो मैं ऐसे स्लोली स्लोली, मतलब स्लोली मेरे फ्रेंड्स ने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया कि तू अच्छा कर रहा है, तू कर इसको और कर। तो मैंने स्लोली स्लोली एक एक साउंड सीखते सीखते फिर मैं 6 साल से बीट बॉक्सिंग करने लग गया। फिर ऑब्वियसली वो डांस का जो ये पसंद था वो छूट गया, क्योंकि मैं बीट बॉक्सिंग में एकदम बीट बॉक्सिंग को सीरियसली लेने लग गया। या That's awesome. Like it's so cool. It's like you started out with three sounds, या okay, and look at it where it is now. It's not like something that you were like even like you knew. Like you just picked up like three sounds because you were interested in something. Now it's gone from like where to where. That's absolutely insane. राइट। तो मतलब So स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगता था कि कैसे एक साथ इतने साउंड्स प्रोड्यूस करे, पर इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मतलब तू जितना प्रैक्टिस करेगा उतना तू सही रहेगा। तो नाउ इट्स वेरी नॉर्मल। and I'm sure like it's constantly a journey because like what so many sounds, so many inventions to be able to it's such a talent honestly. So what are you currently आई डोंट नो, फ्री for? स्टाइल या फिर कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ऑब्वियसली बीट बॉक्सिंग है, कुछ भी कर देने का। Just go on. We have समवन at इज least आस्किंग या ओ वेट दैट्स कियारा, या कियारा ही है मेरे साथ लाइफ। yes. I was actually not fixed today, but the last moment to search and I'm taking मतलब मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, मतलब कुछ लैग वैग कुछ नहीं I हो रहा है ना, राइट? fine. Very fine. अच्छा, Everybody अगर listening can answer कोई fine. कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रहा है, क्लियर साउंड आ रहा है? क्लियर साउंड आ रहा है? वृशाली, नेक्सस, रिक्वेस्ट, हेलो। ये लोग रिक्वेस्ट करे पर बता रहे नहीं है कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब क्लियर आ रहा है, एक तो बोल रहे हैं आईफोन से क्लियर ही Yeah. आएगा ना। अच्छा ओके। It sounds fine to me. या And ओके। that was just that 2 seconds of what you did was so impressive. I can't even whistle, okay? Like normally I can't whistle. And you just did like 30 sounds in 2 seconds. तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अम,
It was just freestyle, पता नहीं क्या किया मैंने. Whatever it was, that was amazing. Okay, Yeah, because thank you. for me, at least as a singer, when I'm listening to this, you know how singers do like riffs and runs, like you know. So Yeah. that's what I'm like getting reminded of when I'm hearing that. But it's like so clean and still like it's switching. So that's crazy. I Thank cannot even you. imagine how you do that. It's like some मतलब next level talent. I know कि you are a singer, लेकिन मैं ना मतलब मैंने से थोड़े बहुत अपने बीट बॉक्सिंग के रूटीन अपने सिंग थोड़े मतलब वोकल्स यूज करके किए, लेकिन मैंने जानबूझ के परफॉर्म नहीं किए क्योंकि यू आर अ सिंगर. नो रिस्क. No, listen, please perform it. If you have Seriously. vocal beatboxing, Yeah. please perform it. All the more interesting. Okay, you're gonna have to perform. Now that you told me, you're gonna have to. लेकिन एकदम क्या क्या बोलते हैं इसके लिए एक अच्छे से जज करना पड़ेगा, मतलब जो स्ट्रेट मतलब जो मिस्टेक्स रहेंगे, मतलब यू कैन ऑब्वियसली करेक्ट मी अगर मैं कुछ कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नया सीखूंगा बिकॉज यू आर अ गुड सिंगर, आई नो. पक्का तो ही मैं परफॉर्म करूंगा. Fine, fine. मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, मतलब कुछ नया सीखने मिलेगा, उससे कुछ बुरा नहीं लगेगा. ठीक है, चल आई स्टार्ट. I'm trying to realize it's alright to not be fine, and just one thing that I need from you. Can you through through yeah, and just one thing that I need from you. Can you Amazing. That was awesome. I love that song, by the way. Yeah, thank I you. love that song. And So you can judge since you me, wanted, please judge me. Judge yeah, me. it was fine. It was great. You Thank you, thank you, you thank on street and you sang everything pitch pay. Everything was perfectly good. It sounded so good, and I love what you did with it. Like you took you. it from like Thank you you so took it much. to so many different places. मतलब I एक सिंगर से absolutely ऐसे loved that. एक सिंगर से ऐसे फीडबैक मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब थैंक यू सो मच. It was on point, solid on point. Yeah. But before we go into like more freestyle, whatever you're planning to, more singing, I hope. Tell me, how did you decide to take this up? Like, when did you decide like, okay, this is what I'm gonna do, this is what I want to do? How did you decide? स्टार्टिंग में जब मैं बीट बॉक्सिंग करता तो ऑब्वियसली कॉलेज फेस्ट ही होते थे जहाँ पे शोकेस कर सकते थे टैलेंट अपना, जो मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ, राइट. तो मैं स्टार्टिंग में आई थिंक फर्स्ट कॉलेज वॉज दालमिया कॉलेज जो गोरेगांव में शायद से, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा था. फर्स्ट टाइम तो मैंने वहाँ पे बीट किया था जो मार्टिन गैरिक्स का एनिमल्स है. तो ऑब्वियसली दैट वाज, मतलब वो हर एक बीट बॉक्सर अपने स्टार्टिंग इसमें करता है. तो मैंने वो किया, तो मैं ना सिलेक्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ शोकेस में किया और मैं टॉप 16 कभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे. तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया. तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, रोज प्रैक्टिस करता था मैं, और मैं
जस्ट बीबर के गाने कवर करता था मैं, एज लॉन्ग एज यू लव मी, वो सब एकदम वो सब करता था। फिर मैं विल्सन कॉलेज में था। विल्सन कॉलेज में मैंने ना फर्स्ट टाइम मैंने किसी के साथ बैटल किया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और क्राउड बहुत चीयर कर रहा था वहाँ पे कि कितना अच्छा कर रहा है ये, और बहुत सारे क्राउड लोग भी बोल रहे थे कि यू आर वेरी गुड। और फिर वहाँ से जो मोटिवेशन मिला, और कि लोग भी इतना तारीफ करते हैं, जब कोई अच्छा करता है तो लोग ऑब्वियसली तारीफ करते हैं, राइट। हाँ। तो वो मोटिवेशन मिलता है कि लोग और बोले, तो उसके वही रीजन था कि मैं और आगे आगे करते गया, तो ऑब्वियसली And then now you're here. या। और एक मेन पार्ट, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैं एक साल पहले वहाँ पे मैं जज था बीट बॉक्सिंग के लिए, तो मैं बहुत Oh, that is like that is like that's when you know you kind of like really succeeded. या It's like I did not get selected myself today. I'm judging. That's insane. And that's so motivational. या And 100%। I lost, so I'm gonna give up. People like I lost, so now I'm gonna get better. So that is like crazy inspiring. Okay, I'm pretty sure मतलब that और एक पॉइंट मेंशन करूंगा, ऑब्वियसली लोगों के अटेंशन के लिए मतलब सिर्फ नहीं करना चाहिए, मतलब एक मोटिवेशन के लिए ठीक है कि यू आर डूइंग, बट ऑब्वियसली एज अ म्यूजिशियन तू पहले खुद के लिए कर कि तुझे खुद अच्छा लग रहा है कि नहीं। लोग कुछ भी बोले कि तू ठीक था, ये था वो था, लेकिन तुझे अगर मज़ा आ रहा है तो लोगों को भी बाद में मज़ा आएगा ही, अगर तू अच्छा रहेगा तो बस लोगों के अटेंशन के लिए नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में बीट बॉक्सिंग, या फिर कोई भी सिंगर या फिर गिटारिस्ट जो भी, बस खुद को अच्छा लगे इसलिए स्टार्ट करना बस। वरना लोगों को लगेगा मैंने बोला, लोग अटेंशन दे रहे थे तो इसलिए मैंने करेक्ट no, but what do you किया। you did a battle and you absolutely enjoyed it. And I think that's one of the main things as a performer, like performing, like when you get that Yeah. from message on stage and for you, doing a battle and all those things, that is because it plays a huge part. Right. Like that feeling only now of being on stage becomes like Yeah. it's like full different vibe only. राइट। मतलब मैंने बैटल स्टार्ट इसलिए किए थे क्योंकि जो स्टेज फियर होता है, मतलब हर एक आर्टिस्ट को स्टार्टिंग में बहुत स्टेज फियर होता है कि स्टेज के ऊपर कैसे परफॉर्म करूंगा मैं। तो मैंने स्टार्टिंग तो वही समझ के किया मैंने। अभी भी मैं कभी कभी बैटल्स करता हूँ, अभी लॉकडाउन के पहले भी मैं बैटल्स अटेंड करता था, मैं जज भी करता था, फिर कभी कभी बैटल में पार्ट भी लेता था मैं। तो मेरे लिए ऐसा बैटलिंग करना, आई थिंक बैटल करने से एक आर्टिस्ट का लेवल बढ़ता है स्किल्स के हिसाब से। तो क्योंकि बैटल्स में बहुत क्रिएटिविटी बताना पड़ता है कि तू बैटल कैसे कर रहा है, स्टेज प्रेजेंस भी काम आता है बैटल हाँ. के टाइम। तो वो स्टेज प्रेजेंस ऑब्वियसली एज अ परफॉर्मर मुझे भी काम आता है जब मैं स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, कि क्राउड इंटरेक्शन कैसे होता है। तो वो सब बैटल करने से बहुत काम में आता है, कि अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है बैटल करने से। मतलब बहुत लोग उसको नेगेटिविटी में लेते हैं कि बैटल करूंगा मैं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, एकदम फाइट के हिसाब से बैटल करते हैं, लेकिन वैसे बैटल नहीं होता है। खुद को इम्प्रूव करने के लिए बैटल करना पड़ता है बस। That's a very interesting like perspective. Like don't battle for the fight, but like battle just to improve your राइट skills and kind of like thinking on the spot as well. I think you have to kind of like really improvise and stuff when you're battling. So that I think really comes into your creativity must be automatically like going up with राइट that. राइट राइट अपने आप आ जाता है वो, अगर तुम सही हाँ, पाथ पे चल रहे हो तो। हाँ. या So tell me a little bit about Bombay local. बॉम्बे लोकल, हाँ। तो जैसे कि डी सैफर पता रहेगा लोगों को, सबसे पहले मैं डी सैफर से मिला क्योंकि ही वॉज द ओनली बीट बॉक्सर जिसको मैं जानता था पहले। तो डी सैफर से मैंने स्टार्टिंग में बीट बॉक्सिंग के बेसिक सीखना स्टार्ट किया था कि कैसे करूँ मैं। तो अभी मैं उसके साथ ही परफॉर्म करता हूँ, मतलब वाह। तो उसके साथ मैंने जाना ट्राई किया, फिर मुझे पता चला कि वो विरार में रहता है, 1 स्टेशन अवे फ्रॉम नालासोपारा। तो तो हम लोग मिलने लगे, और शेक्सपियर द फाउंडर, मतलब जो फाउंडर है बॉम्बे लोकल का, शेक्सपियर आमिर, वो भी नालासोपारा में रहता है। तो मेरे को उसको देख के कभी लगा नहीं कि वो नालासोपारा में रहता है, तो मेरे को लगा वो टाउन साइड कहाँ पे तो रहता रहेगा। जब मैंने उससे जब मैंने उससे बात किया कि कहाँ पे रहते, उसने बोला मैं नालासोपारा ईस्ट में रहता हूँ। तो मैंने बोला अरे मैं तो वेस्ट में रहता हूँ। तो मिलके जैम करते, क्योंकि रैपर्स लोग का प्रॉब्लम ये था कि वो लोग को विरार से दादर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, और ट्रेन का ट्रैवल पता है कितना रश होता है, बहुत 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 प्रॉब्लम्स देता है। तो वो लोग को चाहिए था कि ये साइड भी एक साइफर क्रिएट हो जहाँ पे ये साइड के लोग को वहाँ ट्रैवल ना करना पड़े। तो हम लोग ने
फाइव सिक्स मेम हाँ 5-6 लोगों ने हम लोग ने ना जैम करना स्टार्ट किया। डिसाइफर, मैं, शेक्सपियर एंड रैपर, उसका नाम है ग्रेविटी, पार्थ, मतलब और भी 5-6 लोग थे। तो हम लोगों ने जैम करना स्टार्ट किया। स्लोली स्लोली हम लोग का बॉन्ड इतना अच्छा हो गया ना, तो शेक्सपियर ने प्लान किया कि हम एक क्रू फॉर्म करते हैं जिसमें बीट बॉक्सर रहेगा, ग्राफिटी आर्टिस्ट रहेगा, डीजे रहेगा, ब्रेकर रहेगा, रैपर रहेगा। तो फिर हमने सोचा कि ये साइड ऐसा कभी क्रू बनानी है, सिर्फ डांसर्स लोग आए ये साइड से, तो ऐसा एक प्रॉपर हिप हॉप कलेक्टिव कभी आया नहीं है। तो हमने सोचा कि यहाँ से बनाते हैं। तो फिर वो हम लोग ने वर्क करना स्टार्ट किया। तो सोलो भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, शेक्सपियर अच्छा करा था, मैं, डिसाइफर चैंपियनशिप वाइस चैंपियन का टाइटल लेके आ गए थे। तो वो अच्छा चल रहा था, तो बॉन्ड अच्छा हो गया। फिर अभी एक बॉम्बे लोकल एक क्रू है। That's awesome. It's like you all just created a community. So you all found that there was no community where you all were, so you all like came together and created a राइट community, राइट। मतलब हम which लोग हर is एक आर्टिस्ट से, रैपर से बहुत कुछ सीखने मिलता है, एक डीजे से बहुत कुछ सीखने मिलता है, रैपर्स को बीट बॉक्सिंग से कुछ सीखने मिलता है, बीट का नॉलेज, ये सब बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो वी आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अभी लॉकडाउन है तो and मिल that's नहीं like, पा रहे इतना। and I think learning from each other is also like the way to go. Like always राइट just taking from each other, learning from each other, kind of like building and helping each other grow. That's so राइट। important, especially in a community. आई थिंक So आर्ट that's आई थिंक आर्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग। मतलब आर्ट में हमेशा सीखना ही पड़ता है, कभी खत्म नहीं होता है उसका सीखना। तो I आई थिंक agree. आर्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग। Absolutely. So Yeah. what are you planning for us next? अभी chill, I'll do something. Yeah, So do something. done. Um, this is beat drop. I think मैंने That ये भी was so freestyle, funny. ये भी You freestyle honestly ही कर got me दिया। like in the mood to like dance and party now. Yeah, what even? That was so Yeah. much fun. Especially Thank the you. this big cross section. That was like that like took me off guard. I was like, oh my god, what even? Scratch one. So on मतलब that, मैंने why beat rock? Why the name beat rock? बीट मतलब इसका स्टोरी बहुत फनी है। ऑब्वियसली मेरा रियल, हाँ मतलब फनी नहीं, मतलब मेरे लिए बहुत फनी है, लोगों के लिए पता नहीं। मतलब ऑब्वियसली मेरा रियल नेम है रोशन गमरे, राइट, रोशन। तो मेरा फैमिली है मतलब महाराष्ट्र फैमिली है, ठीक है। तो वो मेरा नाम प्रोनाउंस करते हैं रोशन, नॉट रोशन, रोशन। और मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स सब ऐसे बोलते हैं रोशन, ए रॉ कम हियर। Hmm. तो वो निकनेम दे देते ना, रॉ, ऐसा। तो मैंने बोला कि ROW, सो RAW ऑब्वियसली रॉ का स्पेलिंग होता है। तो मैं अपने ना कभी कभी नोटबुक पे लिखता था RAWSHAN, तो रोशन हो जाता था। तो ऑब्वियसली हर एक बीट बॉक्सर, नॉट हर एक बीट बॉक्सर, कोई कोई बीट बॉक्सर अपने स्टेज नेम के पहले बीट लगाता है, BEAT, हाँ, मतलब वो यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि बीट रॉ, तो ऑब्वियसली मेरे नाम का स्टार्टिंग है और थोड़ा साउंड भी थोड़ा कूल करता है, बीट रॉ। हाँ, yes, it does. मतलब कुछ ये नहीं है, इसके पीछे स्टोरी नहीं है बड़ा, बस
फनी You know सा what ही I है। got from it first? I thought it meant like I didn't even make the connection of raw like Roshan. I thought it was like because you know the beats that you're making are like so like on the spot and raw. So राइट। that's also what like it comes off as, which is also like a dope. अच्छा दे दिया, मतलब मैं अभी लोगों को ये भी बोलूंगा कि ये भी रीजन है। I also like I like the original origin story more though. I think that's way cooler. I like that your name. So रोशन। yeah, Roshan. How was your experience working for the Gully Boy film and you know recording for the soundtrack? How was that? एक्सपीरियंस मतलब क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं अभी गली बॉय में मतलब मेरे 2 ट्रैक्स रहने वाले। ऑब्वियसली जो फाउंडर है क्रू का शेक्सपियर आमिर, ही वाज द वन जो सिलेक्ट हुआ था, जो बैटल करता है, जो ऑब्वियसली गली बॉय देखा रहेगा तो वहाँ पे बैटल सीन है। तो उसने से बोला कि तुम लोग देखने आ जाओ शूटिंग। तो मैंने हाँ बोला शूटिंग देखने मिल रहा है और फ्री बैठे थे, तो मैं तो गया, मैं डी साइफर पूरा क्रू देखने गया वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ लोग जानते थे, मतलब बॉम्बे लोकल को जानते थे। तो जब शूट के बीच में ब्रेक टाइम होता है, जब ब्रेक ले लेते हैं शूटिंग से, तो वहाँ पे है ना एक्चुअल में स्पीकर्स और माइक थे। तो वहाँ पे किसी ने बोला कि तुम लोग परफॉर्म करो ना, अभी ब्रेक चल रहा है। तो मैंने डी साइफर ने परफॉर्म किया वहाँ पे। तो सबने सुना, मतलब हम दोनों एज अ डुओ बीट बॉक्स परफॉर्म करते हैं हर जगह पे, अगर आपने देखा रहेगा तो। या तो बहुत लोगों ने सुना और रणवीर सिंह कूद के ऊपर आ गया। मतलब वहाँ पे हम लोग बैठे थे ना, वहाँ पे कूद के आ गया और है ना हम लोग के यहाँ पे बैठ के नाच रहे, मतलब वो नाचने लग गया बीट के ऊपर। हाँ तो और जोया अख्तर मैम ने भी देखा था कि अच्छा ये लोग बीट बॉक्स करें, मतलब वो लोग ने ऐसा नजर रखा था कि अच्छा ये दोनों कर रहे बीट बॉक्सिंग। फिर शूटिंग खत्म करके हम लोग घर पे आए। फिर हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप पे डब शर्मा ने ऐड किया। उसने बोला कि जोया अख्तर मैम ने मुझे कॉल किया था, वो लोग ने बोला कि एक जिंगुस्तान बीट बॉक्स वर्जन बनाना है। तो मैंने कहा वाह। wow. हाँ, तो फिर बस वहां से स्टार्ट हुआ। And then how is the experience been for you? I find it so cool that you guys just went there to chill and then you have a आई नो room आई there नो with the आई नो। sound. फिर So ऑब्वियसली फिर असली हिप हॉप एक्चुअली सिर्फ डी साइफर करने वाला था। वहाँ पे ना एक मूवी में सीन है जहाँ पे साइफर हो रहा है, वो 10 सेकंड का ही कुछ तो है, जिसमें रणवीर सिंह असली हिप हॉप से मिला ऐसा रैप करता है। लेकिन वो गाना इतना पसंद आ गया ना, तो वो लोग ने सोचा कि इसको एक एल्बम में डालेंगे। तो हाँ ऑब्वियसली मुझे और डी साइफर को पूछा कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो हम लोग गए बैंड्रा में पोपल स्टूडियो में, मतलब एक पोपल स्टूडियो है बैंड्रा में, वहाँ गए। तो वहाँ पे अंकुर तिवारी सर थे, और रणवीर सिंह थे। तो मैं तो मेरे शौक हो गया, वाह सब यहाँ पे बैठे हैं। और मैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा करना है वैसा करना है। और हम लोग नाच रहे थे एकदम वहाँ पे। तो बहुत अच्छा वाइब था। कुछ ऐसे फील नहीं आया मुझे कि कोई सुपरस्टार के साथ बैठा हूँ मैं। ऐसे लग रहा था कि मेरे बाजू वाला ही है कोई तो, और मैं उसके साथ चिल कर रहा हूँ। that's so cool. Honestly, I'm नहीं still ना। over the fact that you guys went to watch the shooting and the next thing you know, like they actually saw like wow, this is some real talent and we're gonna like incorporate this into the राइट movie and राइट राइट राइट। that was so cool. It was like right place at the right time and people got to see you. Is राइट। so why don't you also tell me what is one of your most favorite and like most favorite memory of performing? फेवरेट मेमोरी ऑफ परफॉर्मिंग, एक्चुअली मैंने जेवियर्स कॉलेज में परफॉर्म किया था। एस्टोरिया करके एक फेस्ट Marathon होता song. है, Hmm? आई नो। एस्टोरिया मतलब मल्हार के पहले भी गया था, एस्टोरिया करके एक फेस्ट होता है आई थिंक। Oh yeah, या yeah, 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 एस्टोरिया या। तो एक्चुअली वहां पे मैं कैसे एकदम जैकेट पहन के गया, मेरे को लगा नॉर्मल जहाँ पे हम लोग शोज करते हैं 10-15 मिनट परफॉर्म करके निकल जाने का, ठीक है। yeah. हाँ तो मैंने शो मतलब मैंने और डी साहब ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया आफ्टर राइट गली बॉय के बाद ही ऐसा हुआ था। वो शो था और वहाँ पे बहुत सारे हम लोग के लिसनर्स थे, मतलब वो लोग क्राउड जमा करके सब खड़े हो गए थे वहाँ पे। और हम लोग कुछ भी बीट कर रहे थे ना, वो लोग चिल्ला रहे थे। मैंने बोला वाह, फर्स्ट टाइम मैंने वैसा लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअली बीट बॉक्सिंग के इसमें कोई तो ग्रूव कर रहे लोग, मतलब सब ऐसा कोई हाँ, डीजे नहीं है, मतलब कोई ट्रैक प्ले नहीं हो रहा बैकग्राउंड पे। मतलब बीट बॉक्सिंग के बीट के ऊपर वो लोग ऐसे हेड बैंग कर रहे थे, फिर चिल्ला रहे थे, शोल्डर के ऊपर बैठ गए थे फ्रेंड्स के और एकदम चिल्ला रहे थे। मैंने बोला वाह। college fest performances I think can also be like that या because like everyone's so like into it and everyone या really wants to party, so it's like got a crazy vibe. फिर वो एकदम ऐसा चार्ज हो जाता है। अगर अगर क्राउड एकदम हाइप कर रहा है ना, तो तो फिर ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस भी एकदम चार्ज हो जाती है कि अभी तो एकदम फाड़ना है स्टेज, ऐसा सब।
And when the audience is also being so like receptive, you automatically want to like really kind of like perform even more, you know. So Yeah, that's they the will once more ये वो जिंगुस्तान बजाना, ये गली बॉय वाला वो बजाना, अरे यार। बहुत लोग तो सोचते रहेंगे perform मैं something कमेंट्स रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देख ही नहीं रहा हूँ मैं कमेंट्स, आई एम रियली सॉरी। हाँ तो कुछ तो So I was saying you can perform something else now. What नाउ more do you? मतलब आई कैन परफॉर्म, ठीक है मैं एक ये करता हूँ, मतलब ये बीट क्लियर सुनाई दे रहा है। थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? I फिर can से hear it. I can. मतलब I can hear. साउंडिंग गुड राइट? Sounding fine. Go for it. Go for it. क्या नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे सेट्स है पर मेरे को अभी याद नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। फक, ठीक है, I'll perform something else. Yeah. This start was so like vibey and you know kind of Yeah. trippy and then like it just went into like that was fun. Do you have one more? Thank you. I have one more. Oh, wait. When you've done all these battles and all these performances, so you definitely cannot convince me that you are missing someone not performing something. Okay. अच्छा, I'll try something. Wait. Mhm. Something. Hey. Wait. Yeah. All good? Hello, hello. Can you hear me? Yeah. 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 Tell me something, girl. Are you happy in this modern? Is there something you're searching for? Level up. पता नहीं क्या हुआ, मैंने थोड़ा बीच में थोड़ा मैंने ऐसा थोड़ा ये किया, but it's okay. That was
as every single thing that you've done so far has been so like different, but simultaneously it's all so cool. It sounds so good. It's like Thank you. this sounds so good. I cannot even. And they all create like a different vibe, you know. Like even though they all have drops, they all create like these Mhm. different vibes and these different kind of feelings and emotions as well. So that's absolutely amazing. So Thank I you. have one like fine question for you before we close and all of that. You perform one more for us, I hope. Cool. What is music to Hmm. you? Okay, what is music to you, and who would you say are your biggest influences when it comes to music? एक बार फिर से रिपीट करना, लास्ट का क्या बोला, सुना नहीं मैंने. I said, what is music to you, and who would you say are your biggest influences in music? Like, who do you look up to when it comes to music? म्यूजिक फॉर मी मतलब एक फील, क्योंकि मैं पहले डांसर था तो ऑब्वियसली मुझे म्यूजिक से पहले से प्यार था कि एक डांसर को भी म्यूजिक के रिदम के ऊपर फील करना पड़ता है कि मैं भी कैसे डांस हाँ, करूँ, ना कि सिर्फ हाथ पैर हिलाने पड़ते, वो फील करना पड़ता है. तो मुझे स्टार्टिंग से एक म्यूजिक से प्यार था. ऑब्वियसली अगर मैं बीट बॉक्सर भी नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं सिंगिंग में बहुत कुछ सीख, मतलब आई एम स्टिल लर्निंग नाउ, मतलब मैं सिंगिंग के बारे में और जान रहा हूँ. ऑब्वियसली स्कारलेट मानू ने मुझे बहुत हेल्प करी है कि ऐसे कर वैसे कर. this is so good. तो आई एम लर्निंग फ्रॉम द गुड सिंगर्स, मतलब बहुत बहुत सारे और सिंगर्स है. तो मेरे को ऐसा था कि म्यूजिक इज द ओनली थिंग जो मुझे करनी, मतलब जो मुझे करना है, और ना कि बीट बॉक्सिंग. मेरे को और भी बहुत कुछ सीखना है, सिंगिंग सीखना है, गिटार बजाना सीखना है. तो उसमें मैं कैसे वो सब चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ मेरे बीट बॉक्सिंग में. आई कैन प्रोड्यूस अ ट्रैक सब सब यूज़ करके, सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके. तो मेरे को लगता है ऑब्वियसली ये दिमाग में है मेरे की म्यूज़िक का व्यू मेरे लिए यही है कि मेरे को यही करना है म्यूज़िक के लिए. या और बिगेस्ट मैं किसको सुनता हूँ, ऑब्वियसली मैं बॉलीवुड अभी ट्रैक के नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं. और मैं एक म्यूजिशियन को सुनता हूँ, सिक किक नाम है उसका, पता नहीं अगर आपने सुना रहेगा कि नहीं. सिक किक, ट्रॉय बॉय जो डिप्लो, और अपने इंडिया में ऑब्वियसली करण कंचन है, डब शर्मा बहुत सही म्यूजिक प्रोड्यूस करता है. और भी बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है जिसको मैं सुनता हूँ, और मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, आइडियाज मिलते हैं मुझे क्रिएटिविटी के. या So that's the reason I got from all the different artists they were saying, you know, like the drops and the parts, and even like when it comes to singing and stuff, that it really shows that you're picking up so much influence from so many places. So yeah, you got one final song for us? Or not song exactly, but freestyle, anything. I think I can freestyle. I'll try. Mm. या मतलब मैं क्या क्या पता नहीं, फ्री स्टाइल ही कर रहा हूँ मैं, आई डोंट नो व्हाई.
I'm honestly so much in awe of what you can do. It is absolutely, I cannot even comprehend like how that is possible to make so many noises and actually like be able to control it so well and be able to make it sound good, because that is such a genuine talent in itself. So impressive. थैंक यू मतलब मैं भी स्टार्टिंग में ही सोचता था मतलब इट इज But like, I mean, to just think of that and starting to get to where you are is absolutely insane. So I want to thank थैंक you यू for coming on with थैंक यू मुझे us इनवाइट करने के today. लिए So everything that you shared and everything, like, sharing from your journey, from your experiences, and there are actual teachings that you've given us today, like from what you have been saying, talking about performing and talking about how you found a community and all of those things, and it's so impressive थैंक यू and it's so nice, and I'm sure that all of our Rakshans at Sakshi are gonna learn so much from you. Let me tell you a little bit about Sakshi before we wind या up. प्लीज प्लीज So प्लीज Sakshi, through its Rakshan project, is in the process of engaging with 40 lakh youth all over India to stop child sexual abuse. So we have a very simple maxim: ना करेंगे ना करने देंगे, हो रहा है तो रोक के रहेंगे, हुआ है तो बोल के रहेंगे. And that is our maxim, and that is what we stand for. And yeah, I would like to share our Keto campaign, which is Make Home a Safe Space. Please visit that. Everyone who's watching, who's श्योर still श्योर here, श्योर please visit that and encourage us to create a Rakshan in every single home who is capable of de-escalating violence and preventing child sexual abuse. I also invite you in या specific, and also everyone else who's watching, to our Sunday Freeview webinar. So every Sunday at 3 p.m., we have a webinar that is for anyone who wants to become an active preventer of child sexual abuse. दैट्स And सो we ग्रेट hope that everyone will join in and help us join the movement श्योर श्योर to मैं create खुद a शेयर vaccine in करूंगा every. मैं खुद शेयर करूंगा या Thank you, and I hope to see you there. It would be amazing, and everyone else who's श्योर watching, please, the link is in our bio. Please register and come and watch, because I think it's very important for all of us to be active parts of this movement. राइट राइट I've also put the Kettle link right in the bio if anyone wants to visit it. Please do so. And one final question before we wrap up for good: would you consider या yourself to be a Rakshan? Would you consider yourself to be a Rakshan? A Rakshan is someone who, can you hear me? या आई कैन हियर यू Yeah, a Rakshan is someone who is an active preventer of child sexual abuse. Would you consider yourself a Rakshan? ऑब्वियसली मतलब मैं ऐसा खुद सोचता हूँ जब मुझे श्रेया ने जब पूछा कि तू लाइव आ सकता है क्या साक्षी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मैंने ऑब्वियसली रिसर्च किया और मैंने देखा, मैंने बोला कि कितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं. और जो एक मेरा फ्रेंड है तारुक करके, वो भी आया था लाइव, तो मैंने बोला कि Yes, ऑब्वियसली yes, मुझे भी Tarak आना also ही है. came. मैंने टाइम निकाला क्योंकि मेरे क्लासेस भी थे और ये भी थे, तो मैंने बोला कि मेरे को तो लाइव आना ही है. और मेरे को और तो मुझे फॉलो करते पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आया लाइव और बहुत लोगों ने देखा. I'm sorry, your internet just the last bit. Can you repeat that? वेट Your internet just went. Yeah, okay. या यू कैन हियर मी. Yes, I can hear you. या या आई थिंक वो डोर बंद करते हैं ना, तो वो वाईफाई का सिग्नल नहीं आता अंदर. या So what were you saying? What was the last thing that you said? Tarak and he also came on board and. या तो जब मैंने रिसर्च किया, जब श्रेया ने मुझे बोला कि यू कैन मतलब तू रिसर्च कर सकता है उसके ऊपर, तो मैंने ऐसे ही जब मैं घर पे बैठा तो मैंने किया और मेरे को पता चला कि ऑब्वियसली ये सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर एक ये लोग ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है. और मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है और मैं ऑब्वियसली लाइव आना चाहूँगा. मतलब मैं ऐसा सुना के नहीं बता रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत लाइव आने के लिए मैसेज आते हैं, पर मैं कभी ऐसा लाइव नहीं जाता किसी के साथ. तो मेरे को लगा कि इसके लिए तो मुझे आना ही है और मेरे फॉलोअर्स को बताना है कि I'm एक्चुअल so में क्या रहता happy. है.
I'm Yeah. so happy that you took this decision, and I'm so happy that you considered it became live, because थैंक यू it मुझे really इनवाइट करने के लिए. makes a huge difference. And it's because of artists coming on board like you and other artists that we are also able to spread more awareness and talk to more people, while also Right. engaging with them through creative expressions, you know, encouraging creativity, encouraging music, and simultaneously spreading the message and trying to educate people on how important. अभी इतना लाइव अच्छा था, अभी यहाँ पे कमेंट्स देखना क्या आ रहे. आई थिंक दे आर वेरी स्टूपिड पीपल हियर. Yeah, I think take a long. That's the best. तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए. आई एम वेरी हैप्पी. और Thank you for coming on board. And yeah, I think we will end it here. या Yes, थैंक once यू. again, thank you so much. थैंक यू Bye कियारा. bye. सी यू Good सून. night. See you या soon. Good night, बाय. everyone. Thank you for tuning गुड in. नाइट.